ये कंपटीशन बस यहाँ के लिए कंपटीशन है और कंपटीशन बस क्रिएटर्स के लिए कंपटीशन है, Amazon प्राइम के लिए है, बट फॉर यू गाइस इट शुडंट बी अ कंपटीशन बिकॉज we are artists and we're going to be artists even after this competition. मेरे पापा ने मुझसे सीरियसली पूछा कि क्या तुम डिप्रेस्ड हो? तुम डिप्रेस्ड नहीं हो तो फिर यूपीएससी क्यों नहीं कर रही हो? What is the worst thing that somebody said? तो मुझे तो लीगल नोटिस आ गया था एक बार. One of my friends got married through Tinder, which still surprises me. और अभी भी उनकी शादी चल रही है. कि मुझे बिग बॉस कितना पसंद है और मैंने पिछले जितनी भी सीजन्स नहीं देख के अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस आउट किया है. Hi Shreya, welcome to our apartment, to our show, and thank you so much for coming and spending some time with us. Thank you so much for having me, first of all. I've been a fan of you since Comicstan, especially the Chipkali bit that you did, which in my opinion was one of the most hilarious things, that I saw. Thank you. It's so good to have you here, and I want to say that I'm petrified of Chipkalis, but your bit was brilliant. I hope I made you fall in love with Chipkali a little bit. Yeah. You made me almost want to tolerate them. I think for someone who hates them as much, मैं थोड़ा सा tolerance के level पे आ गई. कुछ तो किया मैंने चिपकली समाज के लिए, मुझे अच्छा लग रहा है. मैं ऐसे लड़कियों के लिए कर रही थी कि जितनी भी लड़कियां सब चिपकली से डरती हैं यार. But I was never so afraid of चिपकली, so I thought let's create a character out of it and perform it on stage and see where it goes. And now see beautiful women like you loving it and going gaga over it. Yeah, it was very endearing. But I want to start by asking you, obviously, ke in your Comicstan journey, who was like a judge or a mentor you had a crush on through the course? Crush तो नहीं कह सकती मैं किसी पे as such, but of course, like some impact they left on me and my performance. Even after Comicstan, I go back to their words, what they had said to me before, or to other contestants as well. सबसे best Rahul Subramaniam, he's the best mentor ever. So wise as in person. मतलब अगर कोई saint like person मैं कह सकती हूँ, किसी को जानती हूँ real life में, तो it's Rahul Subramaniam. So what happened? He was our first mentor. वो जैसे ही आए उन्होंने क्लियर कर दिया था ये कंपटीशन बस यहाँ के लिए कंपटीशन है और कंपटीशन बस क्रिएटर्स के लिए कंपटीशन है, Amazon प्राइम के लिए है, बट फॉर यू गाइस इट शुडंट बी अ कंपटीशन बिकॉज we are artists and we're going to be artists even after this competition. So don't compete with each other, compete with yourself. Like हमेशा अपना बेस्ट देना, या नहीं भी हो रहा कोई बात नहीं, but like just be there, support each other. तो काफ़ी सीन चेंज हो गया था हमारा वहाँ पे and we had a great time after that. And did you make good friends through the process? Yeah, all of them are my best people I've met so far. I think we all connected so well. थोड़ा सा हमारा सीन ऐसा हो गया था कि हम 4 महीने साथ में रह रहे हैं and we're not supposed to meet anyone else क्योंकि कोविड का भी सीन था. तो it was just us. We were talking to each other, eating dinner together, breakfast, lunch. कोई टीवी देख के नहीं खा रहे. Like we were talking, like communicating. तो रात को भी खाना खाने के बाद साथ में बैठ रहे हैं. दोस्त तो बनना ही था. मतलब ऐसा लग रहा था हमें कि लड़ाई होगी हमारी किसी की, यहाँ पे कुछ हो क्यों नहीं रहा है, बिग बॉस देखा हुआ था सब कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं था. आई थिंक जब रियल पीपल मिलते हैं तो फिर ऐसा ही होता है कि पर जब मार्क्स मिलते हैं और पॉइंट्स मिलते हैं तो फिर बुरा नहीं लगता अगर किसी एक वीक में somebody just did better than you? बुरा अपने लगता था कि ओहो मुझे कम आए, बट फिर दूसरे के लिए अच्छा लगता था कि अच्छा इसको कितने अच्छे आ गए. लाइक बिकॉज वी कैन सी ना कितना हार्ड वर्क उन्होंने भी डाला है उसमें. हम सब साथ रहते थे, 7 दिनों जो हमारा होता था कि 7 दिन हमें प्रिपेयर करना है, तो वो 7 दिन की जर्नी भी पता होती थी कहाँ पे इसका सेट क्या था, इसने क्या लिखा था, अभी देखो कितना अच्छा परफॉर्म कर दिया. तो वो जर्नी भी हमने देख रखी है, प्लस हमारी इतनी बॉन्डिंग हो रखी है कि यू गो गर्ल, यू गो माई फ्रेंड, माई ब्रदर. तो वो भी हमेशा ही रहता था. एंड इवन इफ वी लूज या कम नंबर आ गए तो देयर अदर पीपल ऑलवेज, like my friends were always there for me कि यार कोई नहीं, next round है अभी, you can do it, don't stress out, हम कर सकते हैं. तो ऐसा कभी कुछ left alone type नहीं लग रहा था. and that was the main point Rahul Subramaniam gave us कि we are here together in this. And I think after the first season of Comicstan, this was sure only कि सब लोग अच्छा करेंगे.
मतलब I think the first season was very telling that whether you won it or not, I think Nishant won the first one. Everybody else still made it as comics. They're still touring, they're still doing really well. तो सबकी बनी गई life after the show. वही I think वो शो तो बस शो ही है, उसके बाद जैसा कि पॉइंट है उसके बाद भी हमें काम करना ही, उसके बाद भी कॉमेडी करनी ही है. तो शो के बेसिस पे अपने आप को कभी हम जज भी नहीं कर सकते, ना ही उससे अपने आप को हमेशा आफ्टर सम पॉइंट पीपल आर गोइंग टू फॉरगेट अबाउट कॉमिक्सतान एंड व्हेन दे वॉच something new I am going to produce. कि wow this is amazing, oh she was also in Comicstan, that might happen. तो कॉमेडी तो कभी खत्म नहीं होने वाली है. तो एक बात बताओ, आप कॉमेडी में आए कैसे? मैं कॉमेडी में, मुझे एक बार किडनैप कर लिया था किसी ने और फिर बोला कि यार कॉमेडी करके दिखाओ. एक्चुअली हुआ ये था कि मैं कॉलेज में थी और टिंडर बम्बल चला रही थी, टिंडर आई थिंक, और कोई मुझे एक लड़का दिखा. ही वॉज अ कमेडियन, एस्पायरिंग कमेडियन बैक देन. ही वॉज इन कॉलेज, आई वॉज ऑल्सो इन कॉलेज. और उसने बताया ऐसा कि उसके कॉलेज में कॉम्पिटिशन है कॉमेडी का and prize money is like 10,000. I was enticed कि वाओ ये तो करना चाहिए. एक्स्ट्रा 10,000 किसको नहीं चाहिए होते कॉलेज में. So just went for that. There I met other aspiring comedians. I got to know about the circuit कि दिल्ली में ऐसे वर्क करता है. ओपन माइक्स होते हैं, ओपन माइक करो, 5 मिनट बनाओ, 10 मिनट बनाओ, ऐसे सेट बन जाता है. यू कैन ओपन फॉर अदर कॉमिक्स जो बड़े कॉमिक्स हैं, ऐसे नेटवर्किंग वगैरह करो, शो फिर अपना लाइनअप शोज करो, सोलो शो करो. तो आई गॉट टू नो ऑल द बेसिक्स अराउंड कॉमेडी की क्या वर्क करता है. आफ्टर दैट आई वेंट फॉर अ फ्यू ओपन माइक्स बट आई वॉज नॉट सो रेगुलर बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट कन्विंस्ड कि ये करना है या मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं बॉम्ब भी हो रही थी हर जगह. स्टार्टिंग के सारे टाइम में बॉम्ब हो रही थी, कुछ चल नहीं रहा था, तो आई वॉज नॉट श्योर. और दूसरी तरफ पढ़ाई वगैरह भी थी. IAS की तैयारी. मेरे पापा ने मुझसे सीरियसली पूछा कि क्या तुम डिप्रेस्ड हो? तुम डिप्रेस्ड नहीं हो तो फिर यूपीएससी क्यों नहीं कर रही हो? एज इफ जितने भी लोग नहीं डिप्रेस्ड है, खुश है, उन सबको यूपीएससी करनी चाहिए. उनको तो ये भी लग रहा था कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है. मैं कॉमेडी करने गई और कहीं पे मेरी किसी ने वीडियो बना ली है और उस वीडियो के चक्कर में कोई मुझे ब्लैकमेल करे और मैं कॉमेडी नहीं छोड़ पा रही हूँ. That's commitment to a cause. कि इतने साल बाद भी he so convinced कि नहीं, मुझे तो वही कर लो. एक्स बॉयफ्रेंड टाइप ही फीलिंग आती है जो नहीं से बार बार आके आई मिस यू करते रहते हैं. मेरे पापा और मम्मी दोनों एक यार इतना किया है, यूपीएससी तो है. अगर मैं APJ अब्दुल कलाम भी होती और मैंने रॉकेट लॉन्च कर दी होती, मेरे पापा ये बोलते हैं अभी कर दिया अब IAS भी कर लो. मतलब वो रुकते नहीं, IAS उनका एपिटमी है. तो बट हाँ, मैंने ओपन माइक्स कुछ टाइम के बाद, जब मेरा कॉलेज ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था और कॉमिक्सतान 2 का ऑडिशन का ऐसे वीडियो भेजनी होती है तो वो वाला पार्ट चल रहा था, तब मैंने वापस से कॉमेडी करनी स्टार्ट की. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉमिक्सतान सीज़न 2 कि ऑडिशन देना है. तो 10-15 दिन का टाइम था मेरे प्रिपेयर करने के लिए. एंड उसमें मैंने इतने सारे ओपन माइक्स कर लिए, हर दिन जाके ऐसे 3-4 ओपन माइक्स कर रही हूँ. तो मुझे लगा यार ये तो बहुत सही चीज़ है. एंड आई वाज आल्सो गेटिंग बेटर क्योंकि इतना डेडिकेशन उस टाइम आ गया था कि कॉमिक्सतान सीज़न 2 एंड ऑल. हालांकि सेलेक्ट नहीं हुआ मेरा सीज़न 2 में, बट दैट गिव मी अ पुश कि कर तो सकते हैं. एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर सीज़न 3. आई वेंट देयर. इंटरेस्टिंग. एंड मतलब इट रियली इंट्रीग्स मी एंड आई वांटेड टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद आस्क यू कि Do people expect you to be funny all the time? कि मतलब कोई भी बुला के बोलेगा जोक मारो या कुछ हंसा दो, ऐसे होता है at gatherings with friends or family? कोई ऐसा बोलता है मैं गुदगुदी कर देती हूँ वो बात. I think that is the हंसा दिया मैंने आपको भी, so हंसी तो फंसी, you know. But I think friends ऐसा करते हैं कि कोई जोक सुना दो अपना, पर वो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि जब मैं जोक सुनाने चाहती हूँ, एक स्टेज होता है, एक माइक होता है, स्पॉटलाइट होती है, ऑडियंस अपना शांति से बैठी होती है, उनको पता होता है एक परफॉर्मर आने वाला है, वो कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा, फिर ऐसे पंच लाइन वगैरह आएगी. तो वो ऐसे इन रियल लाइफ अगर कोई मुझे बोले ऐसे कोई जो दोस्त जो कॉमिक नहीं है कि जोक सुना दो, इट्स गोना बॉम्ब एवरी टाइम आई ट्राई, इट्स गोना बॉम्ब. एक बार मुझे पुलिस वाले ने पकड़ लिया था ऐसे और बोला जोक सुना. हाँ, फिर सुनाया आपने? यस. And did you get away? उन्होंने बोला इतना गंदा जोक मत ही सुनना और चले जाओ यहाँ से. But yeah, I got away. So out of pity you got away? Actually he did laugh. But मैं तो काफी डर के सुना रही थी. मुझे पकड़ लिया था, मैं हेलमेट पहन के नहीं गई थी. I was there with a friend.
और वो मुझे ड्रॉप कर रहा था घर पे एंड मैंने अपना हेलमेट नहीं, उसके पास ही बस हेलमेट थी, मैंने नहीं पहना, तो हम दोनों को रोक लिया। हम दोनों से थे कि यार हम अच्छे लोग हैं, हम हमेशा पहनते हैं, आज इमरजेंसी है, रात का टाइम है, ये मुझे छोड़ रहा था घर। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो ऐसा, तो उन्होंने हम दोनों कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने ठीक है जोक सुनाओ, और फिर मैंने उनको जोक सुनाया ऐसे, फिर मेरे फ्रेंड ने भी उनको जोक सुनाया एंड देन इज़ लाइक कि ठीक है यार बच्चे ही हैं, जाने दो। हाँ। मैंने विनम्र के साथ आपका पॉडकास्ट देखा क्योंकि आवाज जैसे कि मैं वो नहीं पूछूंगी जो उसने पूछा है, ताकि हमारा कंटेंट सेम ना हो और जो दूसरी बार सुन रहा उसको कुछ नया मिले। तो इसीलिए आई विल नॉट आस्क यू अबाउट बिहार, कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम रिपीट नहीं करेंगे। बिहार के बारे में तो बहुत बात कर, और लालू जी के बारे में, लालू जी के बारे में। But when you moved from Patna to Delhi, you were here for your college, and then you never really went back. No, I still go back because my parents are over there. हाँ, but settle आप इधर ही हो गए ना? हाँ, settle तो इधर ही। दिल्ली के बारे में क्या अच्छा लगा आपको? मेरे दोस्त, आई थिंक जो दोस्त यहाँ पे बन गए, फिर सेकंड फैमिली, प्लस हमेशा से मुझे ऐसा था कि थोड़ी अपनी स्पेस होनी चाहिए, अपना सब कुछ होना चाहिए, और वो सारी चीजें, उसके साथ दोस्त जुड़ते गए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे काफी ज्यादा है कंपेयर टू पटना, ऑफ कोर्स। तो वो स्पेशली इन योर प्रोफेशन तो 100%। अगर मैं वहाँ पे रहती तो आई डोंट थिंक सो मैं कॉमेडी भी परस्यू कर रही होती। मे बी मैं सच में भी IST बन चुकी होती IST के, मुझे सैल्यूट हो बहुत सारे लोग। बट अपॉर्चुनिटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन आई मेट पीपल कि लगा यार सही है, ये लोग भी मतलब इतना कुछ, मतलब mentally I am at peace, so that helps, I think. What was your parents' reaction like when you told them कि I want to pursue comedy as a career? क्योंकि obviously they are obsessed with the idea of you pursuing, you know, IAS, but अब वो नहीं करा आपने, तो जब आपने बताया तो what was their reaction? पहले तो बताया ही नहीं, बहुत सालों तक, 3 साल तक तो उन्हें पता ही नहीं था। मुझे जब कॉमिक्सतान के लिए जाना था तब मैंने बताया कि मैं जा रही हूँ, 1-2 महीने का कुछ ऐसा है, और वो लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो उनका वही था कि वो लोग सब कुछ देख रहे हैं, तुम मुंबई जा रहे हो, मुंबई, और वो लोग होटल दे रहे हैं, होटल में तुम अकेले रह रहे हो एक कमरे में, और क्या सब फ्लाइट, कुछ तो गड़बड़ है। उनका ऐसा था कि यहाँ पे सब कुछ तो होने वाला है, कोई झोल है। हाँ, तो वो बिलीव नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट उनको लगा कि मैं आ जाऊंगी करके एंड देन आई विल गेट बैक टू UPSC प्रिपरेशन एंड ऑल, पर वो तो नहीं होना था। अभी भी मुझे वो परस्यू तो करते रहते हैं कि UPSC इज you know the best, and I totally agree, it's the best, but it's just not for me. And comedy is your life goal because you enjoy it? Yes, I enjoy comedy, anything related to comedy. Maybe I'll make a short film like but writing content, yeah, it has to be comedy, everything like storytelling या कुछ भी हो, वो सब comedy का एक क्या कहते हैं extended version, not just stand-up comedy. Got it. मुझे ना बड़ी genuine curiosity थी, and I wanted to ask you कि while you are trying at open mics, do you get paid to perform, or do you have to pay to perform at open mics when you're like trying your material? So this might sound weird to a lot of people, especially my friends also. जब आप start करते हैं तो हमेशा पे करना पड़ जाता है। जैसे कैनवस लाफ क्लब, ये बहुत सारे ऐसे क्लब्स थे पहले, तो वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आपको अ बिगनर यू हैव टू पे like 500 or something and bring a person along with you, like your bringer audience. अच्छा, उनकी पॉपुलेट करने के लिए जगह। हाँ, क्योंकि ओपन माइक्स में लोग आते नहीं थे देखने के लिए, तो यू ब्रिंग अ पर्सन अलॉन्ग विद यू एंड पे 500, जिसमें से कुछ खाने पीने का मिल जाता है, तो यू नो ट्रीट योर फ्रेंड। और ये एक सिस्टम था जब मैंने स्टार्ट किया था कैनवस लाफ क्लब में, दैट गॉट कॉपीड बाय अदर क्लब्स ऑल्सो, पर वहाँ पे कहीं पे 100 है, कहीं पे 200 है, पर इतना तब भी महंगा ही लगता था यार फॉर अ कॉलेज किड टू गो टू गुड़गांव, और फिर वहाँ पे किसी को लेके जाओ। और मैं तो 2-3 लड़कों को लेके गई और सारे मुझे लगा ये अपना खुद पे कर देंगे यार, मेरे भी पे करा देंगे 500, बट उनके लिए भी मैं पे कर रही हूँ। तो मैंने कैनवस लाफ क्लब तो जाना छोड़ दिया था, बट जो दूसरे क्लब्स थे जहाँ पे 100 या 200 था, मैं वहाँ पे जाती थी। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू परफॉर्म अ लॉट, द क्लब ओनर मे बी और अ सीनियर कॉमिक, दे माइट स्पॉट यू, अच्छा ये तो अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसे लाइनअप में स्पॉट मिलना या ओपन स्पॉट मिलना जो रेगुलर स्पॉट से डिफरेंट होता है,
तो जहाँ पे पे नहीं करना होता, तो वो मिलने लग जाता है. एंड देन व्हेन यू बिल्ड योर मटेरियल यू कैन डू योर ओन शोज. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट वैनिशेस कि आपको पे करना है. बट अभी ऐसा हो गया कि जो नए कॉमिक्स हैं वो रिबेल कॉमिक्स हैं, विच इज़ अ गुड थिंग दैट नाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन क्लब्स, देयर ओन स्पेसेस. और ये कि आप किसी को लेके आओ और पे करो उनके बिहाफ पे, वो कल्चर एंड हो गया है. तो करेंटली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट बस्किंग कल्चर. तो जहाँ पे भी क्लब्स खुले हुए हैं, फॉर एग्जांपल हौसखास विलेज विच इज़ अ वेरी हैपनिंग एरिया, या सत्य निकेतन जहाँ पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट हैं, या गुड़गांव में कहीं पे जहाँ पे रात को मार्केट चल रही होती है. तो ऐसे ऐसे जगह पे क्लब्स खुल गए हैं और वहाँ पे बहुत लोग आ जा रहे होते हैं. तो पीपल बस्क, द कमेडियंस, द न्यू कमेडियंस नाउ, इंस्टेड ऑफ पेइंग एंड गेटिंग समवन, नाउ दे बस्क. और उन्हें रास्ते से जो मिल जाता है, जिनको कन्विंस कर लेते हैं कि एक ओपन माइक हो रहा है, आप आके देखना चाहेंगे. सो नाउ दैट इज द कल्चर बेसिकली. बट डू यू गेट पेड नाउ? पैसे अभी भी नहीं मिलते? पैसे ओपन माइक में कभी नहीं मिलते पैसे, अनलेस इट्स अ पेड गिग या कोई क्लब का गिग है. फॉर एग्जाम्पल समर हाउस में हो रहा है कोई गिग, तो देयर आई गेट पेड फॉर दैट. बट इज इट अ शो और इज इट एन ओपन माइक, वो भी डिपेंड करता है. अगर ओपन माइक है तो फिर आई वोंट गेट पेड. बट इफ इट्स अ शो, अ लाइन अप शो, लाइक मैं हूँ और 2 लोग हैं, या कोई ऐसे बूहो करके क्लब है फरीदाबाद में, वहाँ पे, तो ऐसे जो क्लब्स हैं वहाँ पे अगर कोई शो होता है तो वी गेट पेड फॉर दैट. उसके अलावा हम जो लाइन अप शोज़ करते हैं अपने, जहाँ पे मैं हूँ 2-3 लोग और हैं, तो उसके भी हमें पैसे मिलते हैं. और व्हेन यू आर डूइंग एन ओपनिंग एक्ट फॉर लाइक अ सीनियर कॉमिक और समथिंग लाइक दैट, दैट इज आल्सो अ मोड ऑफ गेटिंग मनी. उसके अलावा तो अपने शोज होते हैं, सोलो शोज वगैरह, तो कॉर्पोरेट गिग, तो दैट्स हाउ यू कैन मेक मनी इन कॉमेडी. डू यू डू अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट गिग्स? नॉट अ लॉट, लाइक once a month, not much. That's not bad. Yeah, once a month. But I don't like doing corporate gigs that much, क्योंकि हर बार मतलब बहुत पहले तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं कैसी हूँ. कभी अगर मुझे किसी बुढ़े लोगों के क्लब में बुला लिया तो अब मैं कैसे, उनकी क्या मैच नहीं होती कभी वेवलेंथ. हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं जिससे मेरा एक्सपीरियंस, मुझे पैसे तो मिल जाते हैं बट मेरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है कि यार ये मजा नहीं आया. तो बेस्ट तो वही होता है कि टिकेटेड शो, आपके जो लोग हैं जो आपकी कॉमेडी देखते हैं, आपसे वाइब करते हैं, वो आ रहे हैं देखने, वो एंजॉय कर रहे हैं, आप जा अपना फिर फन करो. बट कॉर्पोरेट पैसों के लिए मे बी, बट फन वाइज डिपेंड, मजा नहीं आता उसमें. You know, the other thing I was very curious about and I thought I'll ask you is about crowd work. कि मतलब बिकॉज मैंने बहुत शोज देखे हैं एंड आई ऑलवेज वंडर्ड कि हर टाइम ऐसे जोक कैसे क्रैक कर सकते हैं. लाइक इज इट प्रिपेयर्ड, डू यू हैव पीपल, एंड इट्स जेन्युइनली सब सोचते हैं कि कुछ तो 1-2 लोग आपने खुद रखे होंगे कि इतने अच्छे आंसर्स कैसे मिल रहे हैं. लाइक हैज इट एवर बीन दैट पीपल प्लांट पीपल इन क्राउड वर्क, और व्हाट इज द प्रोसेस लाइक? सो आई डोंट थिंक सो एनीवन इज डूइंग दैट इन कॉमेडी शोज़ की लोग अपने लोग बिठा रहे हैं और फिर प्लान्ड क्राउड वर्क होता है. क्योंकि जब वो प्लान्ड होता है ऑडियंस भी थोड़ी वाइब सेंस करी जाती है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी डिफरेंट होती है. हमारी ऑलरेडी जो लिखा हुआ मटेरियल है उसमें एनर्जी, एंड व्हेन वी डू क्राउड वर्क विच इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस, समथिंग स्पॉन्टेनियस, जब भी कुछ होता है वो एनर्जी का शिफ्ट पता चलता है. तो प्लांट तो कोई नहीं करता. बट जब हम शो के माहौल में होते हैं, ऑडियंस भी काफ़ी एंथू में, हम भी काफ़ी एंथू में, तो एक एनर्जी लेवल अलग हो जाता है. हम सभी एक अलग लेवल पे वाइब कर रहे होते हैं, और उस मोमेंट ऐसा कुछ इम्प्रोव या फन आंसर आना इज नेचुरल, I feel. But do people get offended also at like? Oh yeah, they do. मतलब what is the worst thing that somebody said? तो मुझे तो लीगल नोटिस आ गया था एक बार, तो मुझे वर्स्ट थिंग, पर मैंने ऐसे कुछ कहा नहीं था, मैं ऐसे क्लियर कर दूं. तो फिर क्यों भेजा उन्होंने? उनको ऑफेंड हो गया. ऑफेंड तो कोई भी हो सकता है, मतलब कभी भी हो सकता है, इसका तो कोई हम गारंटी नहीं ले सकते हैं. बट लोग ऑफेंड होते हैं और अब ज़्यादा होने लग गए, मुझे ऐसा लगता है. फॉर एग्जाम्पल बस्सी का भी स्पेशल आया था Amazon Prime पे, एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट लॉयर्स. I know, I saw it. I thought it was hilarious. Yeah, it is hilarious. But then some lawyer somewhere in India got offended. Yeah, and then
ही सेंट हिम अ लीगल नोटिस, से पूरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठे हैं, उन्होंने बोला भी उस लॉयर को तेरे पास कुछ और काम नहीं है क्या भाई, तू क्या ये सब हम संभाल लेंगे, तू ठेका मत ले हमारा। तो वो कि ऑफेंड तो लोग कोई भी किसी भी बात पे, राहुल सुब्रमण्यम पे डीजे पागल हो गए थे कि ये डीजे का मजाक कैसे, डीजे फॉर एग्जाम्पल आर यू सीरियस, मतलब तुम्हारे बारे में कोई सोच रहा है वही सबसे बड़ी बात है, बाकी टाइम तुम ढोल बजाते रहते हो रिमिक्स करके, और सॉरी डीजेस आई लव यू जो भी, बट लाइक कोई भी कभी भी ऑफेंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मुझे भी जब लीगल नोटिस आया, मेरे लॉयर दोस्त हंस रहे थे वो पढ़ के और कह रहे थे प्लीज हम इसका रिप्लाई करते हैं, मैं मजा आएगा, तुम्हारे मजे के लिए मैं थोड़ा ना कर रही हूँ ये सब यार, मैं यहाँ पे परेशान हूँ। तो कंट्रोल ही नहीं कर सकते कब कौन ऑफेंड हो जाए। हाँ, क्योंकि वो इंटायर दी AIB यू नो टेन्योर जहाँ कम ऑफेंड होते थे, पर कितने FIR मिले यार, मतलब द तन्मय भट्ट ट्रीटमेंट विद द होल सचिन तेंदुलकर कंट्रोवर्सी, मतलब उसके घर के आके सब पुतले जला रहे हैं, दैट वाज वेरी एक्स्ट्रा। बट मैं बताऊं, मुझे लगता है तब भी उस टाइम उनको बहुत ऐसे सचिन तेंदुलकर को अगर तुम टारगेट करो तब, अभी तो या लता मंगेशकर, हाँ अब मैं ये लप्पू से सचिन को भी बोल दूंगी ना, कुछ लोग पागल हो जाएंगे, उसको लप्पू कैसे बोला है यार, लप्पू ऐसा वो चल रहा है। हाँ ठीक है मैंने नहीं कहा सचिन को कुछ भी। हाँ नहीं कहा भी, तो मतलब फर्स्टली कोई ऑफेंड कैसे होता है, अगर हमने पैसे दे के टिकट ली है तो आप आए हो ना हंसने के लिए, उनके दोस्त जबरदस्ती लेके आ गए होंगे यार, ऐसा भी हो सकता है, मतलब यू आर कंसेंटिंग ऑलमोस्ट टू दैट एज यू आर कमिंग, अदरवाइज मत आओ। हाँ आप कॉमेडी शो में जा रहे हो तो यू हैव टू टेक दैट लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग। हाँ थोड़ा बहुत तो कोई मजाक उड़ाएगा ही आपका। कुछ चीजें मैं समझ सकती हूँ कि ऑफेंसिव हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब सचिन तेंदुलकर के बारे में कोई ऐसा जोक करे, इट माइट ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, बट समटाइम्स इफ इट्स ऑन यू, कुछ कॉन्वर्सेशनल में तुमने कुछ ऐसा बोला और मेरे मुंह से निकल गया है, देन इट्स फाइन, यू शुडंट गेट ऑफेंडेड। या मुझे तो इतने कॉमिक्स ने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मैं बहुत सारे शोज में अपने पेरेंट्स को ले जाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है। माय पेरेंट्स आर रियली रिलैक्स्ड चिल पीपल एंड बिकॉज I look for shows to go to, you know, it's something I look forward to. And I feel like after a certain age now, the responsibility to keep your parents young mentally almost comes on you, you know. Technology has advanced so much in the last few years. इतनी नई नई चीजें हो रही हैं, तो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं लेके जाऊँ उनको, मतलब हम सब कुछ साथ एंजॉय कर सके, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो भी एक हमारे बीच में गैप था, कॉलेज में आते आते थोड़ा बहुत वो गैप क्लोज हुआ, एंड नाउ वी आर एट दैट एज कि अब हम बोल सकते हैं पेरेंट्स को कि यू शुड ट्राई दिस, यू शुड डू दैट एंड ऑल। तो कॉमेडी साथ में जाना पेरेंट्स के तो बेस्ट है। मैं भी एम करती हूँ कि मैं कुछ ऐसे ही जोक्स करूँ जो मेरी मम्मी थ्रू आउट एंजॉय कर सके, एंड आई डिड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ हर, शी लव्ड इट एंड दैट वाज द बिगेस्ट वैलिडेशन आई थिंक। I took my nanny also to a Rahul Dua show because I felt like his vibe is very Punjabi and that she would enjoy that. और वो इतना हंसी, and मतलब I think she was almost heckling, you know, in the beginning when he was just like अरे ये age के, and then she's like screaming कि I'm 75 years old, and I remember in निशान सूरी का एक शो था इन हैप्पी हाई, तो यू नो द सीटिंग है इसकी, आप आगे 2-3 रोज ही होती है, सो स्मॉल, तो वहां पे समहाउ वो एकदम सामने बैठे हुए थे उसके। तो निशान तो जिससे इनको कौन लेके आया, आई रेज माई हैंड एंड आई सेड यू नो, मैं तो 10 लोग को लेके गई थी, मैं फैमिली फ्रेंड्स, माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग्स, तो देन ही इज जस्ट लाइक अरे यू नो आई कांट बिलीव। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इन जेस्ट उसने मजाक उड़ाया, बट मुझे तो हंसी उस पे भी आई, एंड लेटर ही वाज रियली स्वेटिंग, सो माय मॉम एक्चुअली गिव हिम अ टिश्यू पेपर कि तुम अपना माथा पोंछ रहे मम्मी जैसे, ही इज लाइक थैंक यू आंटी। दैट्स स्वीट यार। आई थिंक अब धीरे धीरे वो कल्चर आ भी रहा है, लाइक यू गो टू दीज शोज विद योर फैमिली, तो लोग भी अब आने लग गए हैं, और ऐसा होना भी चाहिए कि सब लोग सेम ह्यूमर पूरी फैमिली इंजॉय कर सके। मतलब कुछ तो हमारे लिए है ही, बट फैमिलीज भी इंजॉय कर सके सारा ह्यूमर, तो बेस्ट है। डू यू एवर थिंक दैट यू वांट टू डू पॉलिटिकल कॉमेडी? मैंने सुनी नहीं है आपकी, क्योंकि पॉलिटिकल वो उतनी अंदर से आता भी नहीं है, मतलब मैं गुस्सा हो जाती हूँ अगर कुछ ऐसा है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, तो वैसे कॉमेडी वाइब में नहीं आता, बट आई लव पॉलिटिकल कॉमेडी, आई लव ओपिनियटेड पीपल, कुणाल कामरा फॉर एग्जांपल, वरुण ग्रोवर, these people are the best, Veer Das also, Veer Das is the only comic जिसके फ्रंट रो में बैठने के लिए मतलब the ticket was 7,000 rupees. Yeah, he's
Unbelievable. I said, यार ये तो crazy है, and his tickets sell out in minutes. Minutes, and his Not shows only are in sold out. India, I think all over the world, America, Canada. But I think Zakir has the same Yeah, Zakir has the same vibe and aura. phenomena. हाँ, उसकी भी मतलब ये जो सारे specials हाँ. हैं ना, ये मैं सब You are a huge comedy I'm a fan. huge comedy fan, Yeah. and I was waiting कि कोई एक comic को तो मुझे बुलाना है podcast Please tell पे. me who's your favorite comedian apart from me. Of course. It's an endless list. I don't Yeah. even think I can pinpoint one because there are different aspects to different people's personalities. Yeah. किसी का मुझे कुछ अच्छा लगता है, किसी का कुछ अच्छा लगता है. That's a true comedy fan over Yeah. here. मतलब like if I don't think so, a comedy fan can stick to one comedian. You can't. Because everyone is offering different things, different topics or different vibe. Yeah. So for example, I love Varun Grover's political comedy. At the same time, मुझे जाकिर की वो देसी rooted लौंडा vibe His बहुत new अच्छी special लगती है. Tathastu, have you? Brilliant. It's more than comedy, I Yeah, think. मैं तो बहुत रोई उसमें. But I still feel Haq Se Single was his best. क्योंकि वो मैंने बहुत बारी देख लिया and it still makes me laugh each time. मुझे याद नहीं, बट मैंने तथास्तु रिसेंटली देखा हाँ. था, तो आई वाज वेरी वेल इम्पैक्ट, लाइक आई फेल्ट द इम्पैक्ट, जैसे रोना, हाँ. इमोशनल हो गए बीच में, हंसा के रुला दिया, रुला के हंसा दिया. दैट इज सम सॉर्ट ऑफ पावर. Brilliance. Yeah. And I love प्रशस्ति, श्रीजा. Like मुझे श्रीजा की straight faced comedy बहुत funny लगती है. Yeah, even I love that. Prashasti also, she released 4 of her bits. I saw it. I Yeah. loved it. मतलब we needed something like that, क्योंकि I totally respect all the other comedians, मतलब जिनकी भी videos out है, और but mostly men side of हमें हमेशा सुनने को मिलता था, तो प्रशस्ति is a fresh breath of air. Yeah. हालांकि वो बहुत पहले से थी, but these 4 videos I think gives a whole new perspective. Yeah. Like how women see things, और हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस लाइक प्रशस्ति की लाइफ में मेनली क्या चल रहा है, which we can all relate to. It's the greatest commentary on Yeah. women who are single in their 30s. I just hope कि वायरल हो जाए, मतलब प्रशस्ति की वीडियो, but audience base maybe I don't think so many people are ready to listen to a woman doing comedy. Maybe that might be the reason. Yeah. But I really hope कि वो ऐसे वायरल हो जाए उसकी ये वीडियो. Speaking of Prashasti, she's obviously expressed उनकी पूरी dating life की misery, highs, lows in the 4 videos that we were just discussing. I want to ask you कि I don't want to ask you if you're dating someone or not. I will not pry. But what is it like to be a funny girl in the dating scene? मतलब do you get bro zoned because you're funny, or have you gotten bro zoned because you're like jokes crack करती है, मजेदार है? पता नहीं, मेरे आसपास जो लड़के रहे वो भी काफ़ी अलग ही रहे हमेशा. वैसे लड़के जो लड़कियों को सब लोग ग्रुप में फ़नी, मैंने कभी ऐसा डिफरेंस फील नहीं किया है सच कि लड़के मुझे ब्रो जोन कर रहे हैं बिकॉज आई एम बीइंग विटी और बीइंग सरकास्टिक. तो वो कभी हुआ नहीं मेरे साथ. एंड मे बी इट्स बिकॉज ऐसे लड़के मिले जो रिस्पेक्ट करते हो इन सब चीज़ों की कि ओके दिस इज जस्ट मेकिंग द कॉन्वर्सेशन इवन बेटर. तो why bro zoning this person? Interesting. Kyunki I have wondered, because Sumukhi spoken about it, Prashasti spoken about it, कि like अगर तुम्हारी vibe थोड़ी relaxed and chill है, तो do men consider you or see you differently? But ये तो I think it goes for everyone. अगर थोड़ा भी कोई opinionated ज़्यादा हो तो लड़के, स्पेशली यंग बॉयज़, मैं ये कह सकती हूँ, जब हम सभी यंग थे और जो मेरे दोस्त अभी हैं जब वो भी यंग थे, तो वो थोड़ा सा कहते थे कि ये सब तुम लोग सारा फ़न ख़राब कर रहे हो, ये सब बोल के एज सच. तो मे बी उसको डील करने के लिए थोड़ा बहुत फ़नी होना पड़ा, सरकास्टिकली रिमार्क्स पास करना स्टार्ट करना पड़ा. तो दे काइंड ऑफ स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट ह्यूमर, और हम सब सेम लेवल पे आ गए. एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रो जोन तो मुझे किसी ने नहीं किया इस बात को लेके, पर हाँ वो रिस्पेक्ट फॉर दैट कि चलो हम सबका ह्यूमर सेम है, दैट स्टेड. Interesting. What is, Shreya, your take on love and dating in today's day and age? पहले काफ़ी मेरी लिस्ट हुआ करती थी कि मुझे ये ऐसा होना चाहिए लड़का, वैसा होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, he should be smart, he should be he also
must know how to cook and clean, he should have a good package and all, जो भी है. But over the period of time, those things kind of started to vanish. क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं खुद पे अप्लाई करने लग गई कि मुझे खाना बनाना आना चाहिए, मैं मुझे बुक्स पढ़ लूँ ताकि स्मार्ट हो जाऊँ. तो जब खुद सब कुछ अचीव कर लिया फिर लगता है कि यार शायद ऐसा कुछ नहीं भी चाहिए, बट कोई ऐसा मिल जाए जो रिस्पेक्ट करे, जो इमोशनली सपोर्ट करे. इमोशनल सपोर्ट बिकेम दी मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अभी भी जो मेरा रिलेशनशिप है, आई थिंक वी कनेक्ट इमोशनली सो मच कि बाकी सारी चीज़ें उतनी मैटर नहीं करती. एट द एंड ऑफ द डे आई नो दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर मी. तो वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि मैं अंदर से सिक्योर फील करती हूँ. इमोशनल सेफ्टी कि यू कैन बी योर मोस्ट वल्नरेबल सेल्फ विदाउट बीइंग जज्ड. एग्जैक्टली. इवन लड़ाई हो भी जाएगी तो आई नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू टेक अप एनी मोर. लाइक कल फिर मैं इसी बात पर चिढ़ ही नहीं रहूँगी उससे, या फिर वो मुझसे चिढ़ा नहीं रहेगा. हम सेम पेज पे ही रहेंगे हमेशा. इट्स जस्ट अ स्मॉल फाइट एंड आगे बढ़ जाएंगे हम इस चीज़ से. And matlab, in this entire sort of career of yours, there's just so much travel that you have to do. There's a lot of trust also that one must need to have in their partner. And I'm sure that's also high up on your list, na? कि मतलब मैं इतने सारे and comedy में इतने लड़के हैं, you can't escape that. आप उनके साथ perform करते हो, आप उनके साथ travel करते हो. मेरा boyfriend भी comedian ही है. अच्छा, फिर तो then that solves the problem. ये एक काफ़ी लाइक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने सबसे काफ़ी लोगों से डिस्कस करा है. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन डेटिंग एप्स? डेटिंग एप्स आई हैव ट्राइड ऑल द डेटिंग एप्स, पर कुछ काम नहीं करता है सच. मतलब फॉर सम पीपल इट हैज़ वर्कड आउट. वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट मैरिड थ्रू टिंडर विच स्टिल सरप्राइजेज मी, और अभी भी उनकी शादी चल रही है. तो फॉर सम पीपल इट वर्क, बट फॉर मी आई थिंक तो मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की तरह हो गया था कि बस स्क्रॉल के जा रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है, ये सही है, और बातें सारी मैकेनिकल हो जाती थी. हाय हाउ आर यू, एक पिकअप लाइन मार दो, लेट्स गो ऑन अ डेट. फिर डेट पे जाके भी सेम इंटरेस्ट बता रहे हैं कि मैं मतलब यू हैव टू ओपन अप. मतलब ऐसे बताना पड़ता है कि ये 1 घंटे का डेमो टाइप है. मैं बता देती हूँ मुझे ये सब पसंद है, मुझे इन सारी बातों से ट्रॉमा है, मेरे साथ ये हुआ था, ये हुआ, सारी फनी एक्सपीरियंसेस बता दी, एंड देन यू आर जस्ट अगेन ब्लैंक कि अब क्या करना है. और ऐसे क्या कहते हैं क्रैश कोर्स की तरह नहीं कर सकते किसी को डेट. और वो स्पेस डेटिंग जो जितनी भी डेटिंग ऐप्स है वो देते ही नहीं है जहाँ पे आप किसी को एक्चुअली जान पाओ. जानने के लिए भी कर सकते हो आप, बट देन इतना सारा ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है. देन यू लाइक व्हाट इफ दिस गाय इज बेटर देन द लास्ट गाय, व्हाट इफ द नेक्स्ट गाय इज गोइंग टू बेटर देन द यू नो द लास्ट गाय आई हैव मेट. तो फिर बहुत ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है वहाँ पे. तो दैट वाज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. आई लाइक टू मीट पीपल इन रियल लाइफ एंड देन कनेक्ट विद देम इन पर्सन. सेम. सो आई एम एग्जैक्टली सिमिलरली ओपिनियनेटेड. मेरा सेम ही वर्डिक्ट है ऑन दिस. मैंने ट्राई भी नहीं करा है बिकॉज मुझे लगता है कि ये बड़ा लाइक यू नो थोड़ा कम्बसम सा प्रोसेस है, थोड़ा टेक्निकल है. इट्स लाइक कि अब मैं इतने घंटे, आई सी माई फ्रेंड्स जो ना, अब उसने इतने घंटे बात करा है रिप्लाई, तो मैं इतने घंटे बात करूंगी. प्लस यू हैव टू राइट अ बायो. अपने बारे में क्या बता दूं मैं एक लाइन में, ऐसा है यार. वो बहुत ही मुझे डिफिकल्ट लगता है कि इतना सारा प्रेशर होता है आपको अपने बारे में जल्दी से बता दो, दूसरे के बारे में जल्दी से सब कुछ जान लो. एंड ऑफ कोर्स द टेक्सटिंग पैटर्न, it's very pointless I feel, but again it works for so many people कि you can't dismiss it also. Calculative maybe शायद उन जैसे होते हैं भगवान ने सबके लिए किसी ना किसी को बनाया है, तो उनके लिए टिंडर वाले ही बनाए थे उन्होंने, तो फिर they got sorted. ये दिल तो पागल का डायलॉग है. I think माधुरी दीक्षित बोलती है शायद किसी सीन में. अच्छा, what has been like your favorite movie growing up? Speaking of movies, Jab We Met. Same, love. I love the first half of Geet. That is my energy. Like I resonate with her. हालांकि मेरी एनर्जी वैसी है नहीं, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है उसे देख के कि कोई इतना खुश, इतना boisterous. तो first half is just my fave. Would you consider acting someday? Acting, अगर कोई मुझे डायरेक्टर किसी कॉफी शॉप में कॉफी पीते देख ले और स्पॉट कर ले या डीएम करे
कि we have a casting call, आ जाओ. मुझे लगता है एक्टिंग के लिए वो जो स्किल चाहिए होती है, मे बी आई कैन वर्क अपॉन दो स्किल्स. थोड़ा सीख लूँ मैं कि क्या क्या थिएटर में भी ज्वाइन करूँ और क्या प्रोसेस होता है, वो सब मुझे पता चल जाए और मैं थोड़ी स्किल डेवलप कर लूँ, देन मे बी आई कैन गो फॉर एक्टिंग. बट अभी तो कॉमेडी पे ही सारा फोकस है. तो कॉमेडी में अब नेक्स्ट क्या करने वाले हो आप? नेक्स्ट फिलहाल तो मुझे यूट्यूब पे अपनी वीडियोस निकालनी है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है. हमने भी पॉडकास्ट इसीलिए शुरू करे यूट्यूब को मोनेटाइज करना है. एग्जैक्टली. तो यूट्यूब इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस नाउ. तो उसके हिसाब से जितना कंटेंट बना सकते हैं पहले वो हो जाए, फिर नए सोलो के साथ ट्रैवल करना है, क्योंकि जब मैंने कॉमिक्स्तान के टाइम जो भी बनाया था अब वो सब थोड़ा बहुत एग्जॉस्ट हो गया और थोड़ा बहुत मतलब मैच्योर हो चुका है कि मैं उससे वीडियो रिकॉर्ड करा के निकालूँ और नई चीज़ पे काम करूँ, नई चीज़ पे काम करके टूर करना है. प्लस आई लव मेकिंग कॉमेडी स्केचेस. तो कॉमेडी स्केचेस लॉन्ग फॉर्मेट बनाने हैं, रील्स के लिए नहीं, रील्स से थोड़े बड़े. फिलहाल तो ये सोचा है. बट इज इट मोर एडवांटेजेस देन टू बी इन बॉम्बे और दिल्ली? मुझे कॉमिक्स का क्योंकि ये दो सिटीज ऑन बैंगलोर, आई थिंक में प्राइमरली सारे कॉमिक्स रहते हैं. पर मुझे ऐसा लगता है दिल्ली में थोड़े कम है कंपेयर टू बॉम्बे. अब दिल्ली में भी ज्यादा हो गए. सो व्हेन वी स्टार्टेड कॉमेडी द थिंग वाज मेनली कॉमेडी क्लब्स मुंबई में थे. Habitat हो गया, That Comedy Club. In fact, Canvas Laugh Club was also in Mumbai. Here we just had Canvas Laugh Club in Gurgaon and Noida, but that happened quite later. तो सारे मेन कॉमेडी क्लब्स मुंबई में थे, रिकॉर्डिंग स्पेसेस मुंबई में थे. तो इवन दो यू परफॉर्म हियर, यू ट्राई योर मटेरियल आउट हियर, यू इवेंचुअली गो टू मुंबई एंड गेट योर मटेरियल रिकॉर्डेड ओवर देयर. तो लोग ये भी रीज़न था कि उधर ही शिफ्ट होने लगे. वहाँ पे पहले बात तो स्पेसेस बहुत सारे हैं जहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कराना वहाँ पे इजी है. प्लस वहाँ पे राइटिंग वर्क अवेलेबल था फॉर कॉमिक्स, जैसे AIB हो गया, SNG, TVF, ये सारे स्पेसेस थे. तो वो कॉमेडियंस को हायर करते थे एज राइटर्स. तो आपका सब कुछ सॉर्टेड हो जाता था मुंबई में. बट अब दिल्ली में प्री पैंडेमिक आई थिंक 1-2 साल पहले ऐसा हुआ कि यहाँ पे भी स्पेसेस खुलने लग गए. और पोस्ट पैंडेमिक तो ये हो गया कि डबल दी नंबर हो गए वो सारे स्पेसेस. तो इतनी स्पेस हो चुकी है कॉमेडी करने की यहाँ पे. प्लस रिकॉर्डिंग वेन्यूज आर नाउ अवेलेबल. तो लोग यहाँ पे भी कॉमेडी करने लग गए हैं. जैसे राहुल दुआ, निशांत सूरी, ये सब पहले पैंडेमिक के पहले मुंबई में रहते थे. आकाश गुप्ता. बट जो भी अब दिल्ली के थे वो सब दिल्ली में आ गए हैं. सारे दिल्ली कॉमेडियंस दिल्ली में रहते हैं. प्लस दीज पीपल टूर ऑल्सो अ लॉट. तो ये तो एनीवे महीने में इधर उधर परफॉर्म करने जा ही रहे होते हैं. बट द फैमिलीज आर ओवर हियर, द कॉमेडी सीन इज ऑल्सो वेरी लाइवली ओवर हियर, तो दे स्टे. बट फॉर न्यू कॉमिक्स जो ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, मतलब एज एन 9 to 5 जॉब नहीं करके कुछ राइटिंग जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए अभी भी देयर इज नो सच स्पेस ओवर हियर. Yeah, because even Sumukhi, I think initially started off as a sketch writer. She was doing stand up on the side also. Even Abhishek Upmanyu, he was a writer. He was at AIB also. Yes. A lot of people used Zakir to be is also a writer at AIB. Yeah, everyone I think wrote for AIB back then. तो वो तो है, यहाँ पे writing opportunity as such नहीं है. But here also people are, making money through doing line-up shows या paid gigs. But of course Mumbai is मतलब writing project wise better. But also फिर वहाँ पे घर बड़े छोटे हैं. घर बहुत छोटे हैं, बहुत expensive है. पर चार्म है उसकी भी, I'm guessing. मतलब people who live in Mumbai swear by Mumbai, उनको फिर लगता है वही बॉम्बे स्पिरिट. मुझे तो दिल्ली काफ़ी बेटर लगता है. बट ऐसे तो मैं भी मुंबई जाके जब मुझे वहाँ पे ऑटो बहुत आराम से मिलने लग जाते हैं, मुझे भी लगता है यहाँ पे ही रहना चाहिए यार. वहाँ पे घर से उतरते ही ऑटो मिल जाता है और वो कोई किचकिच नहीं करते, मीटर चला लेते हैं. तो कुछ तो है मुंबई की बातें, लाइक स्पेशली बैंड्रा वाला जो एरिया है, तो वहाँ पे ही मेन सारे क्लब्स है. तो मैं वहाँ पे ही रहती हूँ, मेरे दोस्त भी वहीं पे रहते हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है. पर जब ट्रैवल करना होता है वहाँ पे थोड़ा भी लंबा डिस्टेंस, देन इट्स लाइक दिल्ली इज बेटर. आई एग्री. अच्छा, as we are approaching the end of our show, the one question we ask everyone is कि अपने busy everyday schedule में how do you unwind after hours? अब क्या करते हो मजे के लिए?
मजे के लिए बिग बॉस देखती हूँ मैं. Really? या आई लव, मतलब ये रिसेंटली मैंने डिस्कवर किया कि मुझे बिग बॉस कितना पसंद है, और मैंने पिछले जितने भी सीजन्स नहीं देख के अपनी लाइफ में कितना कुछ मिस आउट किया है. पहले तो मैंने अपने दोस्तों को देखा बिग बॉस देखते हुए, और फिर मैं उनको देख रही थी क्या देख रहे हैं, और फिर मैंने जब देखा बिग बॉस मुझे लगा ये क्यों देख रहे हैं. पहले तो ये क्यों देख रहे हैं, बट मैंने 3 दिन लगातार देखा, और चौथे दिन में से थी यार चलो चलते हैं घर बिग बॉस देखते हैं सब मिलके. इट कैन रिलेट. मुझे रियलिटी टीवी के बारे में ये एक्चुअली लगता है, क्योंकि आउटसाइड ऑफ बिग बॉस, क्योंकि वो बहुत लंबी कमिटमेंट है और रोजाना शायद घंटे तक की कमिटमेंट है. अब तो वो लाइव है, एज इन यू कैन log in any time and watch these people eating, sleeping. मैं ब्रेकफास्ट के टाइम देख रही थी बिग बॉस, और वो भी खाना खा रहे थे. फिर मैंने शाम को देखा तो वो चाय बना रहे हैं, मैं भी चाय बना रही हूँ. फिर मैंने रात को 4 बजे देखा ऐसे, तो वो सो चुके थे, तो मुझे लगा यार ये तो गलत है. मुझे भी सो जाना चाहिए. तो बिग बॉस कभी भी 3-4 कैमरे आप किसी पे भी जाके देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है. तो इट इज ब्लैक मिरर सॉर्ट ऑफ थिंग नाउ. I felt that passionately about Splitsvilla. Splitsvilla, damn, iconic. I missed that gem as well. मतलब iconic show. But I feel like last couple of seasons I have not enjoyed. तब मैंने देखना बंद कर दिया है. But first season से लेके almost recently तक. I had my friends who were so much invested into Splitsvilla कि वो लोग ऐसे Saturday night plan करते थे, 6 लोग बैठे हैं और फिर डिस्कस करें कि इस लड़के ने क्या गलत किया. I have done that, and I used to sit and watch it with my brother and my sister, and हम तीनों बैठ के हर सैटरडे वेट करते थे 1 घंटे ऑफ प्योर ट्रैश देखने के लिए. बट मैं पहले जज करती थी ऐसे, बट नाउ आफ्टर वॉचिंग बिग बॉस आई कैन कॉन्फिडेंटली एंड यू नो ऐसे कह सकती हूँ मैं कि इट्स नॉट ट्रैश. It teaches us a lot about people. It teaches us a lot. मैंने राखी का स्वयंवर भी देखा है. राखी वो मेरी तो फेवरेट है. आइकॉनिक शो. एंड उससे बेटर मैंने मतलब ऐसे क्या यार ऐसे शोज बिग बॉस को छोड़ के आई डोंट थिंक सो अब ऐसा कुछ रियलिटी टीवी में बन रहा है. हालांकि मास्टर शेफ एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, बट थोड़ा ऐसे रियल लोगों को और प्रॉब्लम में देखना मुझे. आई थिंक मैंने डॉली बिंद्रा तक के सीजन का देखा था बिग बॉस थोड़ा बहुत. हाँ मतलब आई थिंक शी वाज येलिंग एट श्वेता तिवारी, कुछ तो ऐसा. मनोज तिवारी, डॉली बिंद्रा थे और श्वेता तिवारी. तो मनोज तिवारी को एक्चुअली अंडा खाना था और डॉली बिंद्रा बोल रही मैं नहीं खिलाऊंगी अंडा. फिर मनोज तिवारी ने बोला कि मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता. एंड डॉली बिंद्रा बाप पे मत जा. एंड पीछे से श्वेता तिवारी कह रही मुझे भी अंडा खाना है. तो हिलेरियस. या so you unwind by watching reality TV. Yeah. Same. I also Shark Tank also. मतलब some sort of reality TV. Shark Tank is also quite interesting. I love Shark Tank. You must be loving Shark Tank. You are. Though मुझे actually Indian version पसंद है, थोड़ा dramatic है. Dramatic तो है. But I think Indian audiences को cater करने के लिए. मैंने एक्चुअली पहले इंडियन शार्क टैंक देखा, फिर मैंने जो बाहर का देखा ना मुझे ये तो कुछ नहीं मसाला है यार, कोई कलर भी नहीं है से लेके तो मुझे पसंद तो है शार्क टैंक भी काफी. शार्क टैंक इज हु वाज योर फेवरेट जज? पीयूष. सेम. आई लव पीयूष. मैंने तो उसके हसलर चश्मे भी मंगवा लिए जो वो पहनता था. सेम. बट यू नो दैट वाज ऑल स्ट्रेटेजिक. लाइक ही सेड इट इन एन इंटरव्यू विद रोहन जोशी वेयर ही सेड कि माय मर्चेंडाइज टीम टोल्ड मी कि जो चश्मे नहीं चल रहे आप पहन लो शार्क टैंक पे. ओह नो. एंड बिक जाएंगे. एंड दे वर नॉट लाइक सेलिंग वेल. And the glasses that weren't selling well were the ones that he's worn through the season. Damn. And then they sold out. Now I feel cheated. मुझे लगा इसको बहुत पसंद है, इसकी पर्सनालिटी से रेजोनेट करता है ये हसलर बंदा. It was pure selling strategy. मैं हसलर चश्मे पहन के घूम रही हूँ. अरे पीयूष बंसल भी पहनता है, मुझे नहीं पता था उसकी बिक नहीं रही. The name बिक रही थी. Well done. तो that is true shark man. That yeah, true shark. But yeah, he is Piyush Bansal is my favorite as well. और कौन था मुझे पसंद? Vinita, I think. I like Vinita. I mean, I like all. I like her personality a lot. Like she is very fun. I felt. But मुझे I feel like on every level अगर कोई एक शार्क बहुत पसंद आया तो that was Piyush for sure. अनुपम मित्तल also. उनकी जो नज़ाकत है और जो उनका लहजा. उनका अभी करंट रॉबर्ट डाउनी जूनियर लुक नहीं पसंद आ रहा. Oh, the look. Yeah, I'm like थोड़े गैंगस्टर वाइब तो है उनकी. I'm just like you know थोड़ा first season में I really liked his look,
बट मुझे ऐसा लगता है शार्क टैंक की स्टाइलिस्ट बेटर जॉब कर सकते हैं थोड़ा सा, बट इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग शो, मजे तो आते हैं देख के। अच्छा मैंने ना एक रील पे देखा था, मैंने एक्चुअली में लिखा है क्योंकि मुझे इतनी हंसी आई थी सुन के, एंड ऐसे कोई कॉमिक आएगा ना मैं ये पूछूंगी, तो वन ऑडियंस मेंबर इन सम सेशन आस्क्ड अ कॉमिक कि मैं कैसे पता करूं कि वो हंस के देख रही है या देख के हंस रही है। तो इसका जवाब क्या है? हाउ डज वन फिगर, हाउ डज अ गाय फिगर कि वो हंस के देख रही है कि देख के हंस रही है? पहली बात तो उससे खुश हो जाना चाहिए कि वो देख रही है। अब वो हंस के देख रही है, देख के हंस रही है, दैट इज सेकेंडरी। बट अगर वो हंस के देख रही है तो वो अकेले देख रही होगी, लाइक देयर इज अकेले आई कांटेक्ट मेंटेन करके देख रही होगी। बट अगर वो देख के हंस रही होगी तो लोगों के साथ और 4 लोग होंगे जिसको हाई फाइव कर रही होगी वो कि ये देखो यार। फेयर, गुड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, this is the answer then. We've solved the puzzle. We usually play a game at the end where we customize it to our guest, and आपका गेम है कौन सा कॉमिक। तो मैं आपको सिचुएशन दूंगी और क्योंकि आपके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, आप बताना कि इस सिचुएशन में आप कौन से कॉमिक को पिक करोगे। ठीक है? अगर आपको किसी के साथ रोमांटिक डेट पे जाना है तो ओ मेरे बॉयफ्रेंड ओमकार। डन, इजी था फिर तो। अच्छा उसके अलावा कोई बताओ ना। उसके अलावा आई थिंक कनन गिल। सारे लड़के भी कनन गिल को डेट पे लेके जाना चाहते हैं, I'm damn sure. I think Kanan Gill has been pretentious movie reviews के टाइम से like a national crush. Yes, he is so charming. मतलब I think he's 37 or 38 now. काफी टाइम हो चुका है मतलब pretentious movie reviews से अभी के टाइम पे। कॉलेज में थी शायद। He's equally charming. Like अभी भी the way he does comedy, everything about him is very charming. I agree. अच्छा यूरो ट्रिप पे जाना हो तो? यूरो ट्रिप पे जाना हो तो सोनाली ठक्कर, there's this comedian. I know. Yeah, she travels a lot. उन्होंने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप घूम रखा है, मुझे ऐसा लगता है। She'll be good company to show you around. Yeah, she already knows everything, I think. So great. अच्छा girls night out. स्वाति and गुरलीन, दाहब, रूपाली, जितनी भी लड़कियां हैं। I saw Dahab open for I think Sumukhi maybe. Yes. In Delhi. Yeah. अच्छा if you wanted to beat someone up. सबसे कमजोर कॉमिक कौन सा है? नातिक हसन। आई थिंक उसे पीटना आसान है। नहीं, if you wanted, अच्छा और किसी को पिटवाना हो तो? किसी को पिटवाना हो तो भी नातिक हसन। क्या करेगा वो? तो वो पिट जाएगा। तो अगर किसी को पिटवाना है मतलब you'll throw him as bait. हाँ मतलब मुझे उसको पिटते हुए देखना है बेसिकली। ठीक है, चलो यही आंसर ले लेते हैं फिर। अच्छा if you wanted someone to stalk your ex. इसके stalking skills बहुत अच्छे हैं। Dahab, I think she has great stalking skills. She knows everything about everyone. Interesting. अच्छा if you had to pick someone to be your flatmate. My flatmate, राहुल सुब्रमण्यम, because he's so wise. I think वो सब कुछ घर पे भी सॉर्ट रखेंगे। मेड को भी समझाते रहेंगे कि दीदी काम तो काम होता है, आपको यहाँ पे भी करना पड़ेगा, हंसी खुशी कर लो, भी करना पड़ेगा, तो अच्छे से कर लो। तो ठीक है। And if you wanted to, because we heard that you loved the chaat in Indore. Yes. If you wanted to go chaat hopping with someone. Chaat hopping with Ashish Solanki and his wife, both. Because both of them are vegetarian, और उन दोनों को और कुछ खाने को मिलेगा नहीं, तो मैं ही उनकी मसीहा बन सकती हूँ ऐसे उनको चाट खिलाते हुए। तो मे बी दैट्स व्हाई। वेरी इंटरेस्टिंग, गुड आंसर्स। I felt like you were very honest, and I particularly loved the Kanan Gill wala honest answer, despite you picking a boyfriend first. Yeah. But thank you, Shreya. This was such a fun chat. Same here. Had a blast, and I'll come and watch your show soon whenever you're performing. Done. Not in Happy. In Happy, I also. I've seen so many now. Yeah. But I'll come wherever you're performing next to see you. Done. Or maybe in your club. Soon. Hopefully, yes. Yeah. Okay. Bye. Thank you. Thanks.